Okay, when the circuit is complicated, we cannot use the Ohm's law easily. Then we take the help of Kirchhoff's law. All right, so Kirchhoff's rules we have seen. First one was what? Junction law or current law, which is based on conservation of charge. Conservation of charge पे है, because what does it say? Total current approaching is equal to total current leaving at any junction. The sum of the currents entering the junction is equal to sum of the currents leaving the junction. कितना current junction पे enter हो रहा है उतना ही leave करेगा. Based on conservation of charges, whatever the charges are received, that many charges will be delivered. No charge will be held. Electrostatics नहीं है कि charge रुक जाएगा. Charges are continuously flowing है ना. तो क्या हो रहा है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है. जंक्शन पे जितने चार्ज मिले उतने चार्ज आगे आगे चले जाएंगे. ठीक है, दिस इज सिंपल वन. एंड उसके बाद इसकी क्वेश्चंस थे. एक तो क्वेश्चन हमने यहीं पे किया था, जैसे ये सर्किट था, है ना. व्हाट अबाउट दिस वन? इसमें भी देखो एज ए सिस्टम, एज ए होल सिस्टम समझ लो इसका पूरा. करंट लीविंग कौन कौन से है? वन इज लीविंग या अप्रोचिंग पहले लिख लो. अप्रोचिंग कौन से हैं? एंटरिंग कौन कौन से हैं? दिस टू इज एंटरिंग, this 2, this. तो 2 plus 3 plus 4 plus 2. और लीविंग कौन से? this one और इसको भी लीविंग ले लेते. we assume it is going out, है ना. तो अगर प्लस आ गया तो सही है, माइनस आ गया तो एंटरिंग हो जाएगा. तो लीविंग इज 1 plus 2 plus I, है ना. तो इफ यू सिंप्लीफाई, ये 3 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा ये दोनों से, तो 8 एम्पियर प्लस आया. इसका मतलब और डायरेक्शन इज राइट, तो राइट वर्ड. दैट्स हाउ. अदरवाइज इफ यू डू इट वन बाय वन, यहाँ पे करेंगे तो ऐसे भी कर सकते हैं. तो दोनों करंट आउटवर्ड जा रहे, तो यहाँ पे 3 एम्पियर करंट आ रहा होगा, फिर यहाँ पे देखना पड़ेगा. तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, है ना. इफ यू take the junction one by one, then problem will be there. It will take time. So better you assume the system as a whole. Current approaching is equal to current leaving. Clear? Let's see now. Next one. Second rule भी हमने डिस्कस कर लिया था. Let us revise it again. Second rule or loop law, loop rule, it is based on the conservation of energy, because when we move around one complete loop, potential difference is 0, and since it is a conservative field involved, conservative forces है, conservative field है, तो closed loop में work done will be 0, conservative forces, है ना. So it is based on conservation of energy. Work done is energy, only converts into energy. तो इसमें क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस का जो सम है, कहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस होगा? रेजिस्टेंस में और बैटरी में. उसका टोटल सम इज 0. So let's see algebraic sum of changes in the potential difference. Or simply you can write algebraic sum of potential difference in any closed loop involving the resistor and cells is 0. तो यहाँ पर I into R, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस होगा, सबको ऐड कर लो. 1 2, बैटरी भी मोर देन 1 है, उनको ऐड कर लो. Sum of that potential difference across resistances and battery is 0. इसका मतलब कुछ पॉजिटिव होंगे कुछ नेगेटिव होंगे, तभी 0 होगा. तो IR पॉजिटिव कैसे होता है? R नेगेटिव कब होता है? जब करंट की डायरेक्शन में जाते हैं. When we move from high potential to low potential, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाएंगे, करंट किधर फ्लो होता है? हाई से लो पोटेंशियल की तरफ. हाई से लो पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं, है ना, लाइक दिस.
करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं हम, करंट की डायरेक्शन में जब जाते हैं वी हैपन टू गो टुवर्ड्स लोअर पोटेंशियल, तो करंट की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है, इसीलिए I into R will be negative. When you go in the direction of current, when you move in the direction of current, IR will be negative. When you go against the direction of current, अगर ऐसे मूव कर रहे करंट के अगेंस्ट में, तब IR will be plus. उस समय बैटरी नहीं देखनी, बैटरी के लिए क्या करना है, EMF कब पॉजिटिव होगा, जब बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकलते, entering from negative and coming out from positive. In that case, E will be positive, and when you enter from positive and come out from negative terminal, in that case E will be negative. ठीक है, जब EMF का साइन सेलेक्ट करते हैं तो बैटरी का करंट नहीं देखते हैं. If we are moving in the direction of decreasing potential, then potential difference will be negative. यहाँ पे देखो डिक्रीजिंग पोटेंशियल क्या था, ये इसलिए नेगेटिव. इसमें डिक्रीजिंग पोटेंशियल क्या था, करंट की डायरेक्शन में जाने से लो पोटेंशियल की तरफ जाते, इसलिए माइनस है. डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ जाते हैं इसलिए माइनस है. इन विच केसेस डिक्रीजिंग पोटेंशियल होता है, जब करंट की डायरेक्शन में मूव करते हैं या बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से बाहर निकलते हैं. इन दैट केसेस नेगेटिव, अदरवाइज इट इज पॉजिटिव. क्या समझ में आया? IR कब नेगेटिव है, जब करंट की डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं. मूवमेंट कैसे करते हैं, दो ही पॉसिबिलिटी है, आइदर यू मूव क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, या तो लूप में ऐसे जाते हैं या फिर ऐसे जा सकते हैं. एक पॉइंट से चल के एक दूसरे पॉइंट पे आना है, आइदर यू गो क्लॉकवाइज और यू मूव एंटी क्लॉकवाइज, दैट्स ऑल. ठीक है, तो ये हमने अप्लाई भी किया था, सीख भी लिया था हमने. और क्या बताया था इसमें पॉइंट, इन वन ब्रांच ओनली वन करंट विल बी देयर. डाउट कभी कभी ये आता है बैटरी के, इधर तो करंट हमने I1 लिया, तो इधर भी I1 लेना पड़ेगा, पीछे भी, आगे पीछे पूरे ब्रांच में एक ही करंट होगा. तो यहाँ से यहाँ तक सिंगल करंट विल बी देयर. I1 इज शोन हियर, अप टू हियर I1 विल रिमेन. यहाँ पे क्या है, I3 इज शोन, मतलब I3 इंटर हुआ होगा यहाँ पे, तभी तो I3 है वो. बीच में तो कोई और ब्रांच आउट नहीं है. इट कैन नॉट गो एनीवेयर, इट हैज टू रिमेन देयर. और इसमें ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे I2 इज शोन, up to last it will be I2. All right, so that's how you have to be careful about the currents. One branch, one current, and in any loop you can go around the clockwise or anti-clockwise, it's up to you, but we'll continue to go clockwise always. Sign of EMF doesn't depend upon the direction of current. Use the first, okay, as I told you, EMF जब लिखेंगे तो करंट की डायरेक्शन नहीं देखते, और यूज फर्स्ट रूल फर्स्ट. यहाँ पे देखो फर्स्ट रूल लगा सकते हैं या लगा सकते हैं जंक्शन पे, I3 इज इक्वल टू करंट लीविंग I1 प्लस I2. यहाँ पे देखो लगाया हम लोगों ने, करंट अप्रोचिंग इज इक्वल टू करंट लीविंग एट जंक्शन ए इज हियर. ठीक है, और यहाँ पे देखो, लेट मी एक्सप्लेन यू अगेन. ये वाला जो लूप है, ये वाला अपर लूप, इसमें यहाँ से स्टार्ट करो, अच्छा यहाँ तक आना है, पूरा क्लोज करना है, बीच में नहीं छोड़ना उसको. यहाँ से स्टार्ट किया हम लोगों ने, जब करंट की डायरेक्शन में जा रहे तो माइनस I1 इंटू 30, और आगे गए, नीचे आगे, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर है, नेगेटिव से एंटर हुए, पॉजिटिव से बाहर है, प्लस 45, और आगे गए. करंट की डायरेक्शन देखो, I3 इधर दिखाया उन्होंने, करंट की डायरेक्शन में ही हम चल रहे हैं, तो माइनस I3 इंटू 1 माइनस I1 इंटू 40 इज इक्वल टू 0. लास्ट में 0 भी लिखना है, because you are completing the loop, you are coming back to the same point. Sum of all the potential difference should be 0, because same point पे potential will again be becoming same and potential difference will be 0. Conservative forces है, conservative field है. क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया सबको?
ऑलरेडी रिपीट है, ये तो ऑलरेडी डन था। और फिर हम लोगों ने एक क्वेश्चन लिया था ये वाला एनसीईआरटी बुक का, इसमें हमें करंट निकालना था सभी ब्रांचेस में। इक्वेशन बना ली थी हमने, यहाँ से हमने करंट आई लिया था, ये दो पार्ट में डिवाइड कर लिया था, I1 into I2। दिस I विल बी I1 प्लस, ओके सॉरी, ये I1 एंड I2 था दोनों ब्रांच में, नीचे वाली ब्रांच में I2, ऊपर वाली ब्रांच में I1। तो अप्रोच करंट शुड बी इक्वल टू I1 प्लस I2, यही तो डिवाइड हो रहा है आगे जाके। फिर यहाँ पर I3 आ गया नीचे, इसमें कितना बचेगा, I1 वाज अप्रोचिंग, तो I1 में से माइनस I3 जो नीचे चला गया वो माइनस कर दो, बाकी करंट विल कम दिस साइड, हियर I2 इज कमिंग, और ऊपर से I3 आ रहा है सेंट्रल ब्रांच से, तो दोनों मिलके इधर जाएंगे। लो पोटेंशियल इज द पॉइंट C, इधर नेगेटिव है, लो पोटेंशियल होगा बैटरी का, बोथ द करंट विल गो दिस साइड। तो इधर से I1 आया, इधर से I2 आया, ऊपर से I3 आया, बोथ एडेड टुगेदर इज I2 प्लस I3, एंड ये दोनों यहाँ पे ऐड होने के बाद ये और ये ऐड हो जाएंगे, तो I3 कैंसिल है, I1 प्लस I2 जो इधर हमने दिखाया वो इधर आ रहा है। फिर यहाँ पे अगर तुम्हारा ऐड करने से I1 प्लस I2 नहीं आ रहा है, इसका मतलब समवेयर यू हैव डन द मिस्टेक। तो जितना करंट हमने यहाँ दिखाया उतना ही इधर से एंटर होना चाहिए। ऑलराइट, इक्वेशन इसकी बनाई थी फिर हम लोगों ने ये वाली, यहाँ से हम चले थे, करंट की डायरेक्शन में गए, I1 into 10 माइनस, फिर ऊपर से नीचे आए, करंट की डायरेक्शन में ही आ रहे, I3 इज कमिंग डाउन एंड into 5 माइनस I3 into 5, और फिर इधर गए, ए से स्टार्ट करके ए पे आए, तो ये करंट के अगेंस्ट जा रहे, करंट नीचे इधर आ रहा है, तो इसलिए प्लस I2 into 5, रेजिस्टेंस 5 है, करंट इज I2 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन, इसको सिंप्लीफाई कर लो, -5 से डिवाइड कर दो, तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 2, -5 से डिवाइड कर दो, सब्जेक्ट बिकॉज राइट साइड में 0 है, तो वी कैन रिड्यूस दैट टर्म, डिजिट रिड्यूस कर सकते हैं, माइनस का साइन भी इंटरचेंज कर सकते हैं। इक्वेशन 1 ये हो गई थी। ऐसे ही हमने इक्वेशन 2 बनाई है, इसको उसको भी छोटा कर लिया था हमने। इक्वेशन 3 कहाँ से बनाई, ये वाली, यहाँ से स्टार्ट करके इधर गए, करंट की डायरेक्शन में गए थे, तो I2 into 5 माइनस में, और इधर भी करंट की डायरेक्शन में ही गए हम, I2 प्लस I3 into 10, वो भी माइनस में करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं। फिर नीचे आए, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकले +10, और आगे गए तो करंट की डायरेक्शन में ही जा रहे, तो करंट ऊपर ही जा रहा है, I1 प्लस I2, 10 से मल्टीप्लाई किया उसको, माइनस भी है आगे, इसको भी रिड्यूस कर लिया, इसको भी सिंप्लीफाई करके थर्ड इक्वेशन ये मिली। कैन यू सी ऑल द 3 इक्वेशंस, इसको सिंप्लीफाई करना है। देखो आंसर आए इसके, तुमने सिंप्लीफाई किया था इसको, कुड यू गेट द राइट आंसर्स, बोलो आंसर मिले थे? देखते हैं इसके आंसर्स कैसे सॉल्व करेंगे इक्वेशन, we'll see that, we'll see the solving of this equation। इन दोनों को क्या करो, ये 1 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर दो, ये माइनस माइनस, ये तो कैंसिल हो जाएगा, और ये तुम्हारा आएगा -6I2। यहाँ पे देखो मैंने सॉल्व किया है, ये आएगा -6I2, I3 कितना बचेगा, -I3 बचेगा, और राइट साइड में क्या बचेगा, -2। तो ये इक्वेशन तुम्हारी 4th आ गई। इसको भी अच्छा, उसके बाद 4th को ऐसे लिख दो, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया हमने, इंटू 2 कर दिया, और फिर क्या किया कि इसमें से सब्ट्रैक्ट किया, 3 उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो इतना आएगा -9I2 -10I3 -2, और 4th को 3 से मल्टीप्लाई किया, ये वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया, और ये 5 जो मिली है हमें 2 और 3 से जो मिली थी, उसको -2 से मल्टीप्लाई किया, नहीं उसको माइनस इनफैक्ट 3 से मल्टीप्लाई किए करके 2 टाइम्स ऑफ इक्वेशन 5, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसको माइनस किया, दैट इक्वेशन सॉल्विंग यू कैन जस्ट डू इट। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, फिर 4 में 3 से मल्टीप्लाई करने का सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो I3 आ जाएगा, I3 तुम्हारा -2I17 आएगा एम्पियर। माइनस मतलब क्या है,
अच्छा हमने करंट नीचे दिखाया है, माइनस का मतलब क्या है, ऊपर जाएगा। हमने जो दिखाया ना अपना माइनस आ गया, इसका मतलब अपोजिट, करंट विल बी गोइंग अप। अगर प्लस आता तो अपनी डायरेक्शन सही थी, जो उन्होंने दिखाई, हमने नहीं दिखाई डायरेक्शन, दे हैव ओनली शोन, but minus sign means current will be flowing opposite to the arrow shown. Minus sign means current is flowing opposite to the arrow shown. Minus sign means current flows opposite to arrow shown. Can you, are you there? ठीक है यहाँ तक? Yes, sir. Okay. Then from equation 4 ये वैल्यू I3 की 4 में पुट कर दो, ये वाली इसमें पुट कर दो तो तुम्हारा I2 मिल जाएगा। फिर I2 एंड I3 की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर दो, या 1 में भी पुट कर सकते हैं, तो I1 मिल जाएगा। ठीक है, लेट मी शो यू सॉल्यूशन। देखो एक साथ, ये देखो, ठीक है, ये इक्वेशन सॉल्विंग हमने उस दिन इक्वेशन बना के छोड़ दी थी, तो ये सॉल्व करेंगे तो ऐसे ही करना पड़ेगा। तो देखो क्या क्या मिला हमें, करंट इन ब्रांच ए बी, एक मिनट, सर्किट हमें यहाँ नीचे लाना पड़ेगा। जस्ट इसको मैं थोड़ा सा, इसको मैं इधर ले जा रहा हूँ, सर्किट को नीचे लाने की कोशिश कर रहा हूँ। फ्रॉम टू को थोड़ा छोटा सा लिख देते हैं, फ्रॉम टू। लेट मी ब्रिंग द सर्किट हियर एंड चेक द करंट्स। थोड़ी देर के लिए मैं सर्किट को कॉपी करके, लेट मी ब्रिंग इट हियर। कैन यू सी कौन सी ब्रांच है ये भी, ये वाली। इसमें 4/17 सही है, एडी नीचे वाली ब्रांच है ये, इसमें I2 था 6/17। बीडी कौन सी ब्रांच है, ये वाली। बीडी में I3 है, माइनस है, इनफैक्ट करंट इज गोइंग अप। और बीसी कौन सी ब्रांच है, ये वाली। इसमें से I1 माइनस I3 कर दो, तो 6 माइनस कर दो I3 को, माइनस किया तो प्लस हो गया ना, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इनफैक्ट करंट तो ऐसे जा रहा है एक्चुअल में, और ये ऐसे आ रहा है, दोनों ऐड हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखो दोनों ऐड हो गए, माइनस माइनस प्लस हो गया यहाँ पर, 6/17। और ये I2 प्लस I3 कौन सा है, ये वाला, ये वाली ब्रांच में नीचे। कैन यू सी दिस, दोनों इसमें डायरेक्शन सेम है। तो I2 इज 6/17, I3 माइनस है तो माइनस रहेगा। तो ये मतलब यहाँ से इतना करंट इसमें से जो आ रहा था, इस पार्ट ऑफ द करंट हैज गॉन हियर, तो इसमें जो है डिफरेंस ऑफ टू करंट इज 4/17। ये 4/17 आ गया। टोटल करंट कितना होगा, I1 प्लस I2, ऐड कर दो दोनों, 4/17 प्लस 6/17, 10/17 करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल। ऑलराइट, इसमें प्रॉब्लम क्या थी, आंसर में कुछ प्रॉब्लम थी। लेट्स सी वेयर इज द आंसर। ये अपने आंसर आ गए। उन्होंने क्या किया है आंसर में, इसलिए थोड़ा सा डिफरेंस है। CD उन्होंने यहाँ पर CD लिखा हुआ है और माइनस लिया है। यहाँ पर हमने DC लिखा है, D से C की तरफ चल रहा है। CD लिखेंगे तो करंट माइनस होगा। तो लेट मी सी NCERT बुक का आंसर कहाँ पे है, यहाँ पे देखो आंसर, यहाँ पे देखो CD। एक्चुअल में C से D की तरफ करंट आएगा ही नहीं। उन्होंने CD आई डोंट नो क्या सोच के लिखा है, करंट C से D की तरफ, D से C की तरफ जाएगा इधर। जब एरो इधर ही दिया है तो वी शुड हैव रिटन DC। तो यहाँ पे कैंसिल करके करंट इन DC इज इक्वल टू 4/17 एम्पीयर। नो सेंस ऑफ राइटिंग CD, it should be DC, that is I2 plus I3। ठीक है, लॉजिकली ये ठीक है, C से D की तरफ। अगर ये पॉजिटिव है इधर का करंट,
सी से डी की तरफ निगेटिव है, बट वी हैव टू टेक द प्रॉपर सीक्वेंस। जब हमें पता है लोअर पोटेंशियल सी है, इसमें नहीं पता रहता कौन सा पोटेंशियल बी या डी में से कौन सा लोअर है, देन वी कैन नॉट मेक आउट वेदर करंट विल कम डाउन और कम अप। बट यहाँ तो हमें पता है सी इज लोअर पोटेंशियल बिकॉज कनेक्टेड टू नेगेटिव करंट्स हैव टू बी मूविंग दिस साइड। ठीक है, नाउ सेकंड पार्ट ये था फाइंड नेट रेजिस्टेंस। करंट सब मिल गए हमें, all the currents we have got. Find the net resistance of the Wheatstone bridge. This much is the Wheatstone bridge. उसका नेट करंट कितना होगा बोलो, नेट रेजिस्टेंस कितना होगा, कैसे निकालेंगे बोलो? हाउ टू गेट द नेट रेजिस्टेंस ऑफ Wheatstone bridge? Anybody? किसने किया ये? Come on, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ तो आंसर आ जाएगा। क्या कॉमन सेंस लगाना है? जब हमें टोटल करंट मिल गया Wheatstone bridge का, इसका समझ लो ये पूरे का रेजिस्टेंस आर मान लो, आर Wheatstone bridge। तो ये करंट भी मिल चुका है हमें, और नीचे का भी हमें सब पता है, ये रेजिस्टेंस भी पता है, ये भी पता है। तो ओम्स लॉ से इक्वेशन लिखो, इस ये रेजिस्टेंस मिल जाएगा। लेट्स सी, देखो ये यहाँ पे निकाला हमने, फाइंड द नेट रेजिस्टेंस ऑफ Wheatstone bridge ऑफ Wheatstone bridge है। तो देखो तो Wheatstone bridge का रेजिस्टेंस हमने अज्यूम कर लिया RWB, और ये सर्किट था नीचे, यहाँ पे 10 था, यहाँ 10 वोल्ट की बैटरी थी। तो EMF इज इक्वल टू I इंटू R नेट, ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR होता है, तो V की जगह EMF, R की जगह R नेट। EMF कितना है? 10 वोल्ट। करंट अपने टोटल I1 प्लस I2 इज द टोटल करंट गोइंग इन दिस, ये करंट है I, which is nothing but the sum of two currents, which is 10 by 17 which we have calculated into R net। तो R net दोनों सीरीज में आएंगे। अभी ये वाला देखो, ये 10 है नीचे, 10 प्लस रेजिस्टेंस ऑफ Wheatstone bridge, इसको सॉल्व कर लो, कितना आ रहा? 7। इफ यू सॉल्व इट, ये 7 आएगा। रेजिस्टेंस ऑफ Wheatstone bridge विल बी 7 एम्पीयर, 7 ओम। आया था किसी का ये? आर यू देयर? लोगो लाइन पर? Yes, sir. ओके, समझ में आ गया। रेजिस्टेंस पूछा नहीं है इसमें, but you can just do it after getting the current in the circuit. It is easy to get the resistance of the Wheatstone bridge। ये तो मतलब डायरेक्ट नहीं कर सकते, डायरेक्ट रेजिस्टेंस नहीं निकाल सकते Wheatstone bridge का। जब बैलेंस होता है then we can find out, but without balance you have to follow the Kirchhoff law to get the total current, then you can find out the resistance of Wheatstone bridge। क्लियर? देखो ये थोड़ा लेंदी होता है, इसलिए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में तो दे डोंट आस्क यू द अनबैलेंस वन, या फिर बहुत सिंपल सर्किट होता है। इफ एट ऑल दे आर आस्किंग कि एक ब्रांच का करंट 0 ही दे देंगे, बाकी करंट जल्दी से निकाल, बाकी सब सॉल्व कर सकते जल्दी से। क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. दैट्स हाउ बोर्ड्स एग्जामिनेशन में तुम्हें सॉल्व करना है। एटलीस्ट वन क्वेश्चन है सॉल्व इट फुल्ली, अदर देयर आर द सॉल्व एग्जांपल यू कैन जस्ट गो थ्रू। एक सॉल्व एग्जांपल मैं भी करा रहा हूँ यहाँ पर। we will be doing one solid example।
देखो किरचॉफ लॉ का एक शॉर्ट एग्जांपल भी देखते हैं व्हिच इज इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड्स एग्जामिनेशन। तो इक्वेशन तो वैसे ही बनाएंगे जैसे हमने भी सीखी। देखो इसकी लेट्स डू दिस क्वेश्चन। देखो ये वाला जैसे ये है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है शॉर्ट एग्जांपल। बैटरी है तुम्हारे पास 10 वोल्ट की दी हुई है, कहाँ पर, यहाँ पर ये, एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस नहीं है कुछ भी, नो प्रॉब्लम। कनेक्टेड अक्रॉस corners of the cubical network consisting of 12 resistances, each of 1 ohm, diagonally opposite corners पे, एक यहाँ पर एक यहाँ पर. Determine the equivalent resistance of the network and current along each edge of the cube. तो equivalent network निकालना है इसका, बोलो। तो अभी सीरीज एंड पैरेलल में तो काफी प्रॉब्लम जाएगी, कुछ भी नहीं समझ में आएगा कौन सा सीरीज में कौन सा पैरेलल में, बिकॉज कनेक्शंस ऐसे हैं, none of them you will get in series, none of them you will get। देखो यहाँ पे इफ यू थिंक ये सीरीज में है, नो, एक यहाँ से कनेक्शन ऊपर करंट डिवाइड हो गया ऊपर, ये दोनों सीरीज में नहीं है। इफ यू थिंक ये दोनों पैरेलल में है, नो, इधर भी तो कनेक्शन है, ये आपस में थोड़ी दोनों एंड एक साथ होते तब पैरेलल में होते। तो none of them are in series or in parallel। तो व्हीटस्टोन ब्रिज की हेल्प लेनी पड़ती है, जैसे कि अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी नेट रेजिस्टेंस निकाला, ऐसे इसका भी निकाल सकते। इसका तो नेट रेजिस्टेंस ही पूछा है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ही पूछा है। तो क्या होना चाहिए, अगर हमें ये करंट मिल जाए, यहाँ का करंट गोइंग इनटू द व्हीटस्टोन, आई मीन गोइंग इनटू द नेटवर्क, कितना करंट टोटल जा रहा है वो मिल जाए, इसका हम क्या करेंगे, इसका टोटल रेजिस्टेंस आर ले लेंगे, ओम्स लॉ लगा सकते हैं। अभी यहाँ पे तो कोई और रेजिस्टेंस है भी नहीं, V इक्वल टू आई आर, तो V 10 दिया है, आई निकालना पड़ेगा, आर नेटवर्क का निकाल देंगे, करंट निकाल लिया तो डिवाइड कर देंगे तो नेटवर्क का रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो करंट निकालने के लिए किरचॉफ लॉ की हेल्प ले सकते हैं, यस। देखो कैसे, यहाँ पे देखो इन्होंने जो एनसीईआरटी बुक में मैं सॉल्विंग है वही देख लेते हैं ना। यहाँ पे देखो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे 3 एम्पियर करंट लिया, कैन यू सी, दे हैव टेकन 3 आई लिया है, एम्पियर नहीं 3 आई लिया है। यू कैन टेक 1 आई, डजंट मैटर, तुम आई लेके सॉल्व कर सकते हो। तो 1/3 इसमें जाएगा, 1/3 इसमें जाएगा, 1/3, बिकॉज सिमेट्रिक है, all the 3 direction it is symmetric, all the resistances are 1 ohm, है ना, और आगे पूरा diagonally opposite है तो सिमेट्रिक है, तो करंट्स विल बी इक्वली डिवाइडेड। तो 3 एम्पियर में 3 आई में से 1 आई इधर गया, 1 आई इधर, 1 आई। अगर तुमने यहाँ पे आई लिया तो 1/3 करना पड़ेगा ऐसा, तो थोड़ा सा थोड़ा सा awkward हो जाएगा, फिर आगे जाके फिर से डिवाइड हो रहा है, इसलिए बेटर यू टेक 3 आई। तो आई इसमें गया, ठीक है। आगे अगेन सिमेट्रिक है, 2 ब्रांचेस मिल रही है उसको आइडेंटिकल, आर 1 ओम रेजिस्टेंस की आगे है ना, उसके आगे भी सेम है, देखो। तो इसलिए फिर से करंट अगेन हाफ हाफ हो जाएगा, I/2 विल गो इन दिस, I/2 विल गो इन दिस, ठीक है। फिर आगे जाके देखो I/2 इधर से आ रहा है और इधर भी आगे जाके डिवाइड हुआ था, तो I/2 इसमें आ रहा है, ये भी I/2, दोनों ऐड होके I आ जाएंगे। और तीनों ब्रांचेस से देखो, all 3 branches they will be I again, ज्वाइन होके फिर से इसमें 3I बन के इसमें से नीचे आ जाएंगे। इसमें से 3I लिया तो इधर भी 3I होना चाहिए, 3I आना चाहिए। तो दैट्स हाउ वी हैव डन द करंट डिस्ट्रीब्यूशन। अभी इक्वेशन लिख सकते हैं बहुत आसानी से, देखो यहाँ से देखो एक ही इक्वेशन से काम चल जाएगा अपना। इफ यू टेक दिस लूप, कौन सा लूप ले रहे हैं, देखो यहाँ से यू टेक दिस लूप, ये वाला लूप ले लो, फुल लूप ले लेना। एक ही लूप लेने से अपनी इक्वेशन बन जाएगी और सॉल्व हो जाएगी, करंट मिल जाएगा हमें एटलीस्ट, ठीक है। तो लेट्स डू इट, करो अपने आप। यहाँ से देखो, यहाँ तक तो कुछ भी नहीं, बैटरी से स्टार्ट करते, देखो ओके, यहाँ से स्टार्ट करते, ए पॉइंट से स्टार्ट करते, बी तक जब आएंगे, करंट कितना है, आए, रेजिस्टेंस कितना है, 1 ओम, नहीं रेजिस्टेंस 1 ओम नहीं, रेजिस्टेंस क्या दिया था, रेजिस्टेंस तो निकालना है ना, 1 ओम, ओके। करंट क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेट, हाँ, ईच रेजिस्टेंस 1 ओम है, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, तो ईच 1 ओम है, ठीक है। तो यहाँ से 1 ओम है, सभी 1 ओम है, तो
जब हम यहाँ से इधर क्रॉस करेंगे, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, ओके, लूप लिख लो, कंसीडर लूप कहाँ से, ए से स्टार्ट कर रहा हूँ, ए बी सी, ऊपर क्या है, सी डैश है, फिर यहाँ से यहाँ से ये गए, फिर नीचे आ जाओ, यहाँ पे ई है तो ई लिख देते हैं, एंड ए, लास्ट में फिर कहाँ पे पहुंच गए, ए। तो देखो फिर यहाँ से करंट कितना जा रहा है, आई, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, आई इंटू 1, आगे गए यहाँ पर आई बाई 2, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, इंटू 1, ऊपर गए, फिर करंट की डायरेक्शन में जा रहा है, करंट उसमें आई हो चुका है, आई इंटू 1, और इधर अभी क्या लिखे बोलो, यहाँ पे केवल बैटरी है इस ब्रांच में, नीचे वाले में क्या लिखे, बैटरी के कौन से टर्मिनल से इंटर हो रहे हैं, नेगेटिव से, कौन से बाहर आ रहे हैं, प्लस से, क्या लिखे बोलो इधर, +10 और -10, +10. +10. because we are coming out of the battery from higher potential terminal, प्लस से बाहर, जो जिस टर्मिनल से बाहर निकले वही साइन रखेंगे, प्लस से बाहर निकल रहे while moving in the loop, प्लस हायर पोटेंशियल से बाहर निकले, coming toward the higher potential when we come out from the battery is equal to 0, राइट साइड में 0 आएगा। कैन वी सॉल्व दिस इक्वेशन, देखो कितनी आ रही है, माइनस करंट कितना आ रहा है, 2i 5i/2 आ रहा है क्या, Yes, sir. 5i/2, ठीक है, और इधर +10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो समथिंग हैज गॉन रॉन्ग, कुछ मिस्टेक हो गई क्या, ठीक है चलो देखते हैं कितना करंट आ रहा है बोलो, 10 इज इक्वल टू 5i/2, तो I coming is 4 एम्पियर, ठीक है। तो अभी आगे क्या करना चाहिए फिर, बात नेक्स्ट बोलो, लेट आर इज द रेजिस्टेंस, ये पूरे सर्किट का आर है, कहाँ से कहाँ तक का पॉइंट है, आर ए सी ले लो, और नीचे बैटरी है, करंट 4 आया है ना, और ये कितना है 10, तो V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई इंटू आर ए सी डैश, ये हो गया 10 और ये हो गया 4 आर ए सी डैश, तो आर ए सी डैश इज 5/2 ओम, 5/2 आ गया इसका, यहाँ से यहाँ तक का अपोजिट, डायगोनली अपोजिट पॉइंट, ए यहाँ पर है और सी डैश यहाँ पर है। क्लियर, सबको समझ में आ गया जी, किरचॉफ लॉ से इक्वेशन बनाए। हाँ बोलिए सर, टोटल करंट 3i नहीं लेंगे? अरे हाँ करेक्ट, करंट हमारा सिंगल ब्रांच का करंट मिला, सॉरी इसलिए यहाँ पर 3i करना पड़ेगा टोटल कर, देखो एक मिनट जस्ट टोटल, हमने यहाँ पर देखो, यहाँ पर कैन यू सी करंट आई यहाँ पर है, ये 3i है, देखो ये मिस्टेक्स जो है likely to happen, तो टोटल करंट लिखना पड़ेगा, therefore यहाँ पर 3i लेना है ना, therefore 3i will be how much, ओके यहाँ पर डायरेक्ट हम वैल्यू पुट कर देंगे, सर्किट का आई वहां पर रहने दो, सर्किट में 3i लेना पड़ेगा, जस्ट होल्ड ऑन, V is equal to 3i into RAC dash, तो 10 3 into 4 RAC dash, तो RAC dash is equal to 10/12, that's 5/6 ohm. This is okay, 5/6, because I was just feeling that answer is something different. Anyway,
क्रॉस चेक करने से। थैंक यू वेरी मच। तो 5/6 ओम इज द राइट आंसर। यहाँ पर मिस्टेक हो सकती है, इसीलिए जनरली व्हाट आई डू, आई टेक आई हियर और यहाँ पर I/3 करके सॉल्व करते हैं। Then I would have come directly 12 ampere. ठीक है, तो दिस वाज आस्क्ड इन बोर्ड्स एग्जामिनेशन आल्सो, बट प्रॉब्लम ये है अभी कि if they ask you यहाँ से is that फेस डायगोनल पूछ ले यहाँ पर, if battery is connected to A and C or battery is connected to A and B, so that will be very very complicated। किरचॉफ लॉ से आ तो जाएंगे बट करंट निकालने पड़ेंगे तुम्हें I1 I2 I3 लेके, जैसे अभी हमने वो किया था ना अनबैलेंस बीट स्टोन ब्रिज का। इसलिए वो बोर्ड में तो नहीं पूछते बट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं। तो बेटर उसका डायरेक्ट रिजल्ट अगर तुम्हें बता दूंगा मैं बाद में। यहाँ पे कनेक्ट किया तो कितना आता है और यहाँ पे कनेक्ट किया तो कितना आता है, जेई के उसमें लेक्चर में आई टेल यू। अगर ये R ओम दे देते, इफ दे गिव यू R, सभी रेजिस्टेंस R दे दे, तब कितना आएगा? यहाँ पे R आ जाएगा, 5R/6 आ जाएगा। इफ ऑल द रेजिस्टेंसेस इन द ब्रांचेस आर गिवन R ओम, तो यहाँ भी R आ जाएगा। यू कैन सॉल्व इट एंड चेक इट। तो वहां पे 1 ओम दिया है इसलिए वो इतना आया। R ओम दिए देंगे सभी नेटवर्क का तो 5R/6 आएगा। अगर कैपेसिटेंस होता तो सॉरी एक मिनट, अगर ये कैपेसिटर होते तो तभी भी किरचॉफ लॉ से करना पड़ता, तो ये डिजिट इंटरचेंज हो जाती, 6/5C आ जाता है। आइडेंटिकल कैपेसिटर होते ना तो 6/5 आता है, इंटरचेंज हो जाती है। किरचॉफ लॉ से करना पड़ता है, अपने कोर्स में नहीं है कैपेसिटर वाला किरचॉफ लॉ, बट स्टिल आई विल गिव यू वन क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन कैपेसिटर का। ठीक है, नो प्रॉब्लम बोलो यहाँ पर। No problem, sir. Okay. This is a solid example, but it was asked in board examination. Again, it can be changed. ये वैल्यू आर 1 की जगह in place of 1 ये 2 दे देंगे तो कितना आएगा? तो सब जगह 2 करना पड़ेगा इधर हमें, तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, 10/6 आ जाएगा, ऊपर यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, आगे देखें फिर। तो आर यू कंफर्टेबल विद द इक्वेशन राइटिंग ये वाली? इसमें तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या किसी को कि माइनस, यहाँ पे माइनस क्यों लिया यहाँ पे प्लस क्यों लिया? प्लस इसलिए लिया कि हम डिसाइड करते हैं क्लोज लूप में जाने का। तो जब हमने डिसाइड किया क्लॉकवाइज जाएंगे तो ये इक्वेशन आएगी। somebody में से नो सर मैं एंटी क्लॉकवाइज जाऊंगा, ऐसा तभी भी सेम इक्वेशन आएगी। यस, प्लस ये साइन इंटरचेंज हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस। क्यों? बिकॉज यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से बाहर निकले तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और करंट के सभी अगेंस्ट में जाएंगे, करंट के अगेंस्ट में जाएंगे तो ये प्लस हो जाएंगे। सॉल्विंग के बाद फिर वही बात आ जाएगी, फिर से सेम आंसर आ जाएगा। ठीक है, so you can go anti-clockwise or you can go clockwise. Answer is not going to change. क्योंकि सारे साइन राइट साइड में तो 0 है, सारे साइन इंटरचेंज हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएंगे, फिर से सेम इक्वेशन। ऑलराइट, विल कंटिन्यू, थोड़ा सा और आगे देखते हैं, इसी के क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, ये भी सॉल्व एग्जांपल है, यू कैन जस्ट प्रैक्टिस। 7th सॉल्व एग्जांपल है, एक्सरसाइज अपना सॉल्व एग्जांपल का क्वेश्चन नंबर 7।
तो यू कैन प्रैक्टिस दिस वी हैव डन इट, है ना, ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। Okay. देखो कभी कभी हमें पार्ट ऑफ द लूप में लगाना पड़ता, पूरा लूप नहीं है। सपोज ये ऐसे लूप है, देखो ओके, ये लूप ऐसा था कहीं पर, है ना? कुछ और भी रेजिस्टेंस थे आगे, है ना, बैटरीज भी थी, बट हमें पार्ट लिया, उसका इतना पार्ट लिया, केवल that much part we have taken. Can we use the Kirchhoff law? Answer is yes, we can use it. So using the Kirchhoff second law for part of the loop का ही पार्ट है। कैसे यूज करते हैं इसको, देखो क्वेश्चन के फॉर्म में देता हूँ। फाइंड VAB मतलब यहाँ का और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, और फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ A एंड B। तो जैसा हमने लूप के लिए लिखा वैसा इसके लिए भी लिखेंगे क्वेश्चन। इसके लिए बस चेंजेस क्या है, यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ से देखो स्टार्ट करो VA, यहाँ पे VA लिख लो, ये पहला पॉइंट। फिर करंट के एरो अब ऐसे दिया, देखो करंट का एरो, तो हम तो इधर जा रहे हैं B की तरफ, करंट के अगेंस्ट में जाएंगे, ये क्या आएगा, प्लस आ जाएगा, करंट के अगेंस्ट में जा रहे हैं। कितना दिया करंट दिया है क्या, 1 एम्पियर दिया, देखो यहाँ पर। नहीं, एक मिनट, ये सेकंड पार्ट होगा इसका मेरे ख्याल से। ओके जस्ट मिनट, मैं लेट मी सी, सेकंड एरो मैंने बाद में चेंज किए, क्या किया, हाँ एरो पहले इधर है, देखो ये सेकंड पार्ट के लिए करंट इज 1 एम्पियर एंड ये वही रहेगा थ्रू आउट, तो 1 एम्पियर। देखो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, बाकी का आगे सेम, स्टार्टिंग एंड एंड में हमें VA एंड VB लिखना, मैंने लिखा हुआ है। कैन यू सी दिस, देखो यहाँ पर देखो VA लिख दिया हमने, और करंट की डायरेक्शन में गए, माइनस कितना करंट है 1 एम्पियर इंटू रेजिस्टेंस कितना है 2, करंट की डायरेक्शन में जाए इसलिए माइनस। यहाँ पर इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर आए इसीलिए +3, फिर आगे गए तो करंट की डायरेक्शन में फिर से हम यहाँ से करंट की डायरेक्शन में ही चल रहे हैं अभी भी, -I/4, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से बाहर आ रहा है तो -5। इतना लिखने के बाद अभी क्या है, अभी सब पार्ट्स कवर हो गए, B पर पहुंच गए, तो ये सब प्लस माइनस होके हमें B का पोटेंशियल मिल जाएगा। यहाँ से स्टार्ट किया, इसका पोटेंशियल यहाँ पे प्लस माइनस जो भी है किरचॉफ लॉ से करने के बाद कितना बचेगा, पोटेंशियल ऑफ B विल बी रिमेन्ड, ऐसे लिखना पड़ता है। तो ये और ये पॉइंट यहाँ पे 0 नहीं लिखना है, क्योंकि हम वापस A पे नहीं आए ना, जब A पे आते तब 0 लिखते, हमने यहीं पे रोक दिया, तो यहाँ पर यहाँ का पोटेंशियल भी होगा, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लो, VA और यहाँ पे -2 है और ये 3 और ये कितना है -4, तो इसको ऐड कर लो, कितना आ रहा है -9 आ गया, यहाँ पे सब प्लस माइनस होते हैं, ठीक है। तो जस्ट मिनट है, तो क्या आ रहा है देखो, ये तुम्हारा -9 हो गया, B को इधर ले आओ, 9 को इधर ले आओ, तो VA - VB इज 9 वोल्ट, मतलब A इज एट हायर पोटेंशियल, प्लस डिफरेंस जो प्लस आ रहा है 9 वोल्ट आ रहा है, A हायर पोटेंशियल पे। सपोज तुम्हारा अगर यहाँ माइनस आ जाता है तो इसका मतलब क्या था, A लोअर पोटेंशियल पे इसलिए माइनस आ रहा है, इसका मतलब A इज एट हायर पोटेंशियल, पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब A इज एट हायर पोटेंशियल, 9 वोल्ट इज द आंसर A B के बीच में। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, तो कैसे करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है A से, VAB पूछा है तो A से स्टार्ट करो, और करंट की डायरेक्शन में गए इसलिए माइनस, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकले इसलिए +3, फिर आगे चले, करंट सेम रहेगा थ्रू आउट, 1 ब्रांच पे 1 करंट, आगे गए माइनस, करंट की डायरेक्शन में जा रहा है इसलिए माइनस, और अभी यहाँ पे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से बाहर निकले इसलिए -5 वोल्ट, और सब प्लस माइनस होने के बाद B पर पहुंच गए तो वो B का पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल डिफरेंस B का पोटेंशियल होगा। तो सिंप्लीफाई कर लो, VA - VB विल बी 9 वोल्ट, ठीक है। तो इसमें मैंने और इसमें पार्ट बनाया है, देखो यहाँ तक ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन ये है, अभी सेकंड पार्ट का क्वेश्चन ये है, इफ A is अर्थ देन फाइंड द पोटेंशियल ऑफ B। A को अर्थ किया हमने, यहाँ पर अर्थिंग कर दिया, तो अर्थिंग का पोटेंशियल कितना होता है,
अर्थिंग का 0 हो जाता है, तो 0 हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस VB विल बी -9 वोल्ट। कॉमन सेंस से बोल सकते हैं ए हायर पोटेंशियल पे हमें पता लग गया डिफरेंस दोनों का 9 वोल्ट है, अगर ये 0 है तो ये -9। इक्वेशन से भी मिल रहा है, यहाँ पे देखो मैंने किया हुआ है, यू कैन सी। अर्थ करने से क्या होता है, उस पॉइंट का पोटेंशियल 0 हो जाता है। इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दी 0 और VB -9 वोल्ट आ गया। इसका एक पार्ट अपने आप करेंगे होमवर्क में, देखो ये पार्ट होमवर्क में करो। रिपीट द पार्ट 1, रिपीट द पार्ट 1, देखो क्या लिखा है, रिपीट द पार्ट 1 इफ डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स। अभी करंट की डायरेक्शन ऐसे कर दी, ये यहाँ से ये निकाल देना ये वाला, अभी करंट ऐसे दिखा देना, तभी भी तुम्हें VA माइनस VB ही निकालना है। देन आल्सो यू हैव टू फाइंड VA माइनस VB। ठीक है, तो जैसे ये पार्ट किया है पार्ट 1, वैसे ही वो करना है प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो देखते हैं कितना आएगा, whether it will be coming 9 वोल्ट और -9 वोल्ट और समथिंग एल्स, आई डोंट नो क्या आंसर आएगा, बट डू इट। अभी कैसे करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे B से। करंट की डायरेक्शन इधर ले ली ना, तो बेटर यू स्टार्ट विद B ओनली, यहाँ से मत स्टार्ट करो, जिधर से करंट जा रहा है उधर से B से स्टार्ट करो। करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम A ओनली, तभी भी तुम्हारा आंसर जो आएगा B से स्टार्ट करेंगे तभी भी सेम आएगा। यू कैन डू इट बोथ वे, यू स्टार्ट फ्रॉम A से स्टार्ट करेंगे तो करंट इधर आ रहा है, तो प्लस I इंटू 2 1 इंटू 2, और यहाँ पे +3 हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, तो VA माइनस VB आ जाएगा तुम्हारा। हो सकता है +9 वोल्ट आया, ये आई डोंट नो। B से स्टार्ट करेंगे तभी भी सेम आना चाहिए, इसमें भी B से स्टार्ट करते तो सेम आना चाहिए था। यू कैन डू इट एट होम, इसको दोनों से कर लेना। स्टार्ट फ्रॉम A, देन फाइंड आउट VA माइनस VB, स्टार्ट फ्रॉम B, then you see is it coming same or not. In any case it should come same, difference should not be changing. You start from A or B. ठीक है, sometimes you have to use it for the part of the circuit, and you should know this also. क्लियर, यहाँ तक बोलो, किसी को कोई डाउट हो तो पूछो जल्दी से, क्योंकि ये टॉपिक में थोड़ा कंफ्यूजन होता ही है सबको। ये टॉपिक में किरचॉफ लॉ में यू सम ऑफ यू हैव द कंफ्यूजन, इसलिए बेटर क्लियरिफाई हियर इटसेल्फ। पूछ लो यहाँ पर जल्दी से, अनम्यूट करो और पूछो, whether this one or previous one or equation कहीं भी पूछ सकते हो। ठीक है, Kalina, you have any doubt? Those who are not responding means not in the class. Aditya Patki, other Aditya Kashti, why don't you respond? Yes, sir. Yes, कोई doubt है? No, sir. अपराजिता? No doubt, sir. Okay, Aryan, अच्छा Aryan, you may have doubt because yours is the first class. Ayush Bhandarkar? Sir, here VA minus VB would be 8 volts. यहाँ पे माइनस का गड़बड़ हुआ क्या? ओके, एडिशन में कॉलम हुआ क्या? पहले ही बोल दिया करो, कैलकुलेशन में भी एक मिनट चेक करता हूँ, यहाँ पे क्या था, एक मिनट, 2 माइनस का है और ये -6 माइनस 11 और ये 3, 8 आ जाएगा। कैलकुलेशन थोड़ा सा बता दिया करो तुरंत में, इमीडिएटली यू स्पीक आउट, बिकॉज उसमें क्या होता है फिर छूट जाएगा तो सबका लॉस हो जाएगा फिर। ठीक है, ऑलराइट।
Thank you. Any other difficulty? It means others are silent. तुम लोग भी, बाकी लोग भी एक्टिव रहा करो. जस्ट देखो, कैलकुलेशन मिस्टेक्स आर बाउंड टू हैपन बिकॉज वी हैव टू एक्सप्लेन द थिंग्स साइमल्टेनियसली, वी हैव टू राइट. तो कैलकुलेशन में मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं समटाइम्स. तो इमीडिएटली यू पिन पॉइंट देयर इटसेल्फ, सर कैलकुलेशन में -8 आ रहा है. इवन इफ यू हैव द डाउट सर यहाँ पे 8 आएगा कि 9 आएगा, ऐसे जल्दी से बोल सकते हैं अनम्यूट करके. ठीक है, ठीक है जीशान. जीशान, No sir, no doubt. ठीक है. तो लास्ट पार्ट कर लेना अपने आप. और किरचॉफ लॉ के एक आध क्वेश्चन और है मेरे ख्याल से. हाँ, पहले हम लोगों ने वो जो टर्मिनल पोटेंशियल का क्वेश्चन किया था ना, कि मैंने बोला था कि व्हेन द डिस्चार्जिंग होती है तो कितना होता है, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर. ये हमने डायरेक्ट लिख दिया था, डायरेक्ट लिखा था. तो अभी किरचॉफ लॉ से प्रूव कर सकते हो. देखो, नाउ यू कैन प्रूव इट. देखो यहाँ पर देखो, ओके, यहाँ से स्टार्ट करते हैं. ए से यहाँ पे हमने लिखा VA, आगे गए, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से बाहर आए माइनस, फिर और करंट की डायरेक्शन इधर है. देखो, कैन यू सी? थोड़ा बड़ा हो सकता है क्या डायग्राम? लेट मी जस्ट सी. ओके, जस्ट अ मिनट. कैन यू सी इट नाउ? स्लाइटली बिगर. देखो, तो अभी यहाँ से माइनस ई आ गया, और इधर से और आगे गए तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस है. करंट इधर आ रहा है. देखो, ये दोनों तरफ से करंट इज कमिंग. करंट मैंने बोला एक ब्रांच में एक ही करंट रहेगा. यहाँ पे हमने आउटवर्ड शो किया था डिस्चार्जिंग में, इधर भी इधर ही रहेगा टुवर्ड्स लेफ्ट. यहाँ पर देखो, करंट के अगेंस्ट में गए तो प्लस आया, लास्ट पे पॉइंट बी पर पहुंच गए तो इज इक्वल टू VB. तो VA माइनस VB इज इक्वल टू E माइनस आया, और VA माइनस VB इज नथिंग बट B. Therefore, yeah. So that time I told you, when we see the Kirchhoff's law, then only I can explain you, not now. वहाँ पे डायरेक्ट डिस्चार्जिंग में माइनस लिखा था और चार्जिंग में प्लस लिखा था. अगर चार्जिंग है तो एरो किधर होता है? ऐसे कैन वी डू इट. पर चार्जिंग में देखो एरो इनवर्ड होता है. तो तब क्या होगा? VA क्या चेंज हो जाएगा? चलो यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ मैं. क्या चेंज होगा? VA तो एज इट इज, और माइनस E एज इट इज. करंट की डायरेक्शन अब इधर हो जाएगी, तो यहाँ पे माइनस IR हो जाएगा इक्वल टू VB. तो ये माइनस IR इधर आके प्लस आ जाएगा. देखो, तो चार्जिंग में प्लस था, यू कैन सी द नोट्स. चार्जिंग में प्लस था और डिस्चार्जिंग में माइनस आता है बीच में. तो ये हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा था. वहां पर यू कैन जस्ट रिवाइज द नोट्स. टर्मिनल पोटेंशियल एंड EMF का रिलेशन. V क्या है? टर्मिनल पोटेंशियल. बैटरी के बाहर, ये ऐसे बैटरी रहती है, समझ लो ये बैटरी ऐसे, ये बाहर के पॉइंट है प्लस और ये माइनस. पेंसिल सेल जैसा समझ लो थोड़ी देर के लिए, ऐसे ऐसे. ठीक है, ये प्लस ये माइनस. तो टर्मिनल पोटेंशियल इज V. टर्मिनल्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टमीटर दिखा था, वो अंदर का EMF E, और ये माइनस यहाँ पे थोड़ा ड्रॉप हो जाता है इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से. बाहर जो हमें मिलता है उसको टर्मिनल पोटेंशियल बोलते हैं. बैटरी का जो एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो E होता है. बट आइडियल नहीं होती बैटरी, कुछ लॉस हो जाता है, कुछ अंदर ही ड्रॉप हो जाता है. मैंने पढ़ा था. डू यू रिमेम्बर ऑल दीज पॉइंट्स? तो डिस्चार्जिंग में माइनस और चार्जिंग में प्लस, वहां पे हमने डायरेक्ट लिख दिया था. किरचॉफ लॉ से प्रूव किया अभी. ऑलराइट, this was done earlier. ठीक है, यहाँ तक हम A से B की तरफ मूव कर रहे हैं. इवन इफ यू मूव फ्रॉम B to A, तभी भी सेम आंसर आएगा. वी कैन गो बोथ वे. देखो, ये क्वेश्चन जो है, कैन यू ट्राई दिस क्वेश्चन? बहुत सारे रजिस्टर दिखाए. लेट अस सी व्हाट इज द क्वेश्चन. डू यू हैव द केमिस्ट्री क्लास नाउ?
just confirm. I will leave you after this question. केमिस्ट्री क्लास है क्या अभी? No idea. Nobody is responding. Are you there? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. क्लास है क्या अभी? No idea, sir. अच्छा चलो ठीक है. देखो ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क दिया, ये इतने सारे रजिस्टर दिए. देखो let's read out the question. All the registers have resistance 4 ohm. जितने भी दिख रहे हैं सभी 4 ohm है. And all the batteries, ideal batteries है. Ideal means internal 0, R is 0. All the batteries have an EMF 4 volt. सभी जहाँ भी दिख रही है बैटरी दिख रही है, यहाँ भी दिख रही है, बहुत सारी है. You can see everywhere 4 volt. यहाँ पे मैं हाईलाइट कर दूं, ये 4 ohm है और ये 4 volt है. What is the current through resistance R? ये वाला रेजिस्टेंस है, इसमें करंट निकालना है. इसमें तुम्हें करंट निकालना है, ये वाला करंट I निकालना है. What is the current through resistance R? If you can, अच्छा इसमें हिंट भी दिए देखो. Can you go through? If you can find the proper loop through this maze, you can answer the question with few seconds of mental calculation. So you have got the big hint. ठीक है, तो ये ट्राई करो. You can take the snapshot. इसका बनाना तो मुश्किल है. एक इसका स्नैपशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो और ट्राई करो, फिर मुझे कल आंसर सॉल्व करके भेजो. You can write only equation. अगर तुम्हें ये डायग्राम पूरा नहीं बनाना है तो सॉल्विंग की जो इक्वेशन है वो बना के और आंसर कैलकुलेट करके भेजो. किरचॉफ लॉ से होगा ये भी. ओम्स लॉ नहीं लगा सकते हम, क्योंकि बैटरी कहीं और है और रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस की बात. ओम्स लॉ विल बी almost impossible to use. Kirchhoff law will be very handy. Just few seconds में आंसर निकाल सकते हैं. दिया ना few seconds. ठीक है, just will wind up in 2 minutes. This is not from our textbook. अपनी textbook का नहीं है. It is taken from other books. Textbook में ऐसा क्वेश्चन नहीं है. ठीक है. But this is interesting. Just very easy, very easy. You will find just few seconds में ही solve कर सकते हैं if you can properly trace the proper loop. All right. So let me see what is next. ऐसे ही कैपेसिटेंस का है. We'll do it tomorrow. Similar way, कैपेसिटेंस के लिए भी I will teach you how to use the Kirchhoff law. ठीक है, यहाँ पे फिर मैं रोक दूं क्या कि करा दूं ये थोड़ा और. Can we have 5 more minutes? कर लेते हैं. We'll use the 5 minutes. कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, जैसे कि हम लोगों ने रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन पढ़ा था, है ना, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन. कैपेसिटेंस का भी पढ़ा था, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन. सिमिलरली सेल्स का भी सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है. देखा सीरीज कॉम्बिनेशन सेल्स का? हैव यू सीन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल? ओल्ड टॉर्च थी ना, ओल्ड पुरानी वाली टॉर्च जो रहती घर में. आजकल तो सेल फोन में, बट जो गार्ड्स वगैरह यूज करते हैं या फिर उसमें पेट्रोलिंग में लंबी सी टॉर्च रहती है, उसमें सेल, वी पुट द सेल वन बिहाइंड द अदर. तो वो एक के पीछे एक प्लस माइनस ऐसे लगाते हैं, फिर इसका प्लस ऐसे डालते हैं. इवन रिमोट में भी डालते हैं ना. 2 सेल जो रिमोट में डालते हैं वो सीरीज में ही होते हैं एक्चुअली. हमें पता, हाँ उसमें दिखते नहीं है ठीक से, बट इफ यू पुट वन सेल बिहाइंड द अदर, सीरीज रहता है ऐसा. दिस इज सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सेल्स. इसमें क्या होगा, सपोज ये 1.5 वोल्ट है, ये भी 1.5 वोल्ट है, तो 3 वोल्ट हो जाएगा पोटेंशियल. ईएमएफ 3 वोल्ट हो जाएगा. एक और सेल डालेंगे तो 4.5 हो जाएगा, है ना. तो सीरीज में वन बिहाइंड द अदर, प्लस माइनस. जैसे ये देखो, ये प्लस इसका, फिर इसके पीछे एक और लगाया, ऐसे एन सेल लगा दिए, तो सबका क्या होगा,
प्रॉपर देखना, सबका प्लस माइनस प्रॉपर होना चाहिए, है ना। तो ये n सेल्स तो सब ऐड हो जाते हैं सीरीज में, जैसे रेजिस्टेंस में ऐड हो जाते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, वैसे ईएमएफ भी ऐड हो जाते हैं। किरचॉफ लॉ से कर सकते हैं हम यहाँ पे ऐसे, किरचॉफ लॉ से चलो एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज जाओ, है ना। तो बट यू कैन डायरेक्टली राइट, डजंट मैटर। तो सारे ईएमएफ E1 प्लस E2 प्लस E3 अप टू En हो जाएंगे। रेजिस्टेंसेस कितने हो जाएंगे, वो भी सीरीज में आएंगे, सबके इंटरनल रेजिस्टेंस वो भी हो जाएंगे ऐड, ठीक है। तो करंट जो है ये वो ओम्स लॉ, नेट ईएमएफ अपॉन नेट रेजिस्टेंस। नेट रेजिस्टेंस में मैंने क्या बोला था, इंटरनल रेजिस्टेंस जितनी ऐड कर लेंगे उसको फिर एक्सटर्नल के साथ सीरीज में लेते हैं। यहाँ पे जो सिंगल बैटरी आ जाएगी तुम्हारी, देखो ऐसे आ जाएगी, सिंगल बैटरी आ जाएगी जिसका ई नेट हो जाएगा और इंटरनल रेजिस्टेंस भी आर नेट हो जाएगा, और नीचे तुम्हारा एक रेजिस्टेंस है। अगर यहाँ पर भी 2-3 रेजिस्टेंस होते सपोज सीरीज पैरेलल में या सीरीज में, वो भी ऐड कर लेते। फिलहाल तो एक है, तो उसके साथ इंटरनल रेजिस्टेंस विल बी ऑलवेज इन सीरीज विद द नेट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इसके साथ सीरीज में ऐड हो गया। तो करंट ड्रॉ आ जाएगा बैटरी में से, कितना करंट ड्रॉ कर रहा है। नेट ईएमएफ सब ऐड हो गए और इंटरनल रेजिस्टेंस भी ऐड होके एक्सटर्नल के साथ सीरीज में आ गया, है ना। अगर सपोज 2 ही सेल होते आइडेंटिकल, तब क्या होता, E प्लस E हो जाता 2E, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता, वो 2R हो जाता। तो यहाँ पर हम इक्वेशन में क्या लिखते हैं, 2E और यहाँ पे 2R। तो 2 सेल के लिए कभी कभी क्वेश्चन आता है, इसलिए मैंने आइडेंटिकल सेल्स हैं तो उसकी इक्वेशन, करंट की इक्वेशन ऐसे आएगी। पैरेलल में भी लिखेंगे तो उसका क्वेश्चन आता है 2 सेल्स का, ठीक है। ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया, यहीं पे मैं रोक रहा हूँ, जस्ट आई एम स्टॉपिंग हियर। दिस वाज सिंपल केस, पैरेलल का कल देखेंगे एंड फर्दर न्यूमेरिकल्स। यहाँ पर भी देखो सब आइडेंटिकल होते तो कितना होता, n इंटू ई हो जाता, और ये भी सब आइडेंटिकल होते तो n इंटू आर हो जाता, ऐड अप हो जाते हैं, है ना। सीरीज में हमें ज्यादा पोटेंशियल चाहिए तो सीरीज सेल को आगे पीछे डालते जाओ, ऑल ईएमएफ विल बी एडेड अप, इंटरनेशनल विल बी आल्सो एडेड अप, फिर हम ओम्स लॉ से करंट निकाल सकते हैं, ठीक है। यहीं पे मैं आई एम जस्ट स्टॉपिंग हियर, विल कंटिन्यू पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसी के कुछ और पॉइंट कल बताऊंगा मैं, सीरीज के सम मोर पॉइंट्स आर रिमेनिंग, विल डिस्कस टुमारो। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। बोलो कुछ।